أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے سبق نمبر 3A اور B آج ہم انشاءاللہ کور کریں گے۔ آپ سب بہنوں کو خوش آمدید اور مبارکباد۔ اللہ رب العزت نے اس سفر کے لیے ہمیں چنا، آپ کو اللہ رب العزت نے منتخب کیا ہے، اپنے انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ اور خیرکم من تعلم القرآن، یہ جو ہم نے اس کی احادیث وغیرہ پڑھتے ہیں ان کو اپنے رکھیے، ذہن میں رکھیے، تاکہ ہم اس بات کو اس حدیث کے مصداق کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، ہم نے حدیث کے دونوں پہلوؤں پر عمل کرنا ہے۔ آج سیکھ رہے ہیں، کل انشاءاللہ سکھانے والوں میں بھی ہوں گے۔ چلیے ہم اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ آج ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 اور 5 پڑھیں گے۔ ابھی شاید آپ کو لگ رہا ہو کہ ہم بڑی سلولی چل رہے ہیں، تو یہ جو سورہ فاتحہ ہے الحمدللہ یہ قرآن مجید کی پہلی سورہ مبارکہ ہے، اور قرآن مجید کا ایک لفظ بھی بہت وسعت میں ہے، اتنا بھی آپ اس کے بارے میں سیکھتے جائیں کم ہے۔ تو ابھی ہم شروع میں تھوڑا سا سلو ہے کہ تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے ہمارا پیٹرن کیا، ہم نے پڑھنا کیسے ہے۔ آہستہ آہستہ تھوڑا سا ہمارا کورس تیز ہو جائے گا۔ جیسے ہم آج گرامر میں سیکھیں گے ضمائر متصلہ، یعنی کہ جو اٹیچ ہو کر پروناؤنس آتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہو، ہم، کا، کم، جی اور نا، اس کو ہم گرامر کے پارٹ میں دیکھ لیں گے۔ نکات تعلیم اور شوق میں ہم دیکھتے ہیں احتساب، دعا، پلان وغیرہ۔ اور آج کے اس سبق میں ہم انشاءاللہ 6 ایسے نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن مجید میں تقریباً 3451 مرتبہ آئے ہیں۔ اس بات پر کہیے الحمدللہ۔ جی الحمدللہ، دیکھیے گا کہ سبق نمبر 3 کے اختتام پر ہم 33 نئے الفاظ سیکھ لیں گے جو قرآن مجید میں 12,089 مرتبہ آئے ہیں، یعنی کہ 12,089 مرتبہ آئے ہیں۔ قرآن مجید میں کل کتنے الفاظ ہیں؟ جو ہم نے مادے وغیرہ سارے اس کے ملائے تھے تو یہ 4500 الفاظ ہیں، کیونکہ تقریباً پورے قرآن مجید کا 78,000 بنتے ہیں، اور ہم نے کتنے سیکھ لینے؟ ہم نے انشاءاللہ 41,000 ایسے ورڈ سیکھ لینے ہیں جو قرآن مجید کا تقریباً 50% بنتے ہیں۔ کیجیے گا ذرا میرا تھوڑا سا، اچھا جی۔ اور اس میں یہ کہ ہماری یہ جو بار ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ الحمدللہ تیزی سے اوپر کو جا رہی ہے، اور اس بات پر ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور یہ جو ایک فلار ہے اس کو آپ نے اٹھانا ہے، یہ آج کا ہمارا تیسرا فلار ہے انشاءاللہ۔ چلیے جب ہم آگے دیکھتے ہیں ہمارے 7 ہوم ورکس ہیں۔ ہوم ورک کون سے ہیں؟ آسان ہے۔ 2 تلاوت کی، تلاوت کیسے کرنی ہے؟ قرآن مجید میں سے دیکھ کر، جیسے ہم عام روٹین میں کرتے ہیں، اسی طرح سے جو ہمیں حافظے سے ہمیں زبانی یاد ہے، خاص طور پر ہمیں آخری سورہ اکثر یاد ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ واقعہ ہے، سورہ ملک ہے، سورہ الکہف ہے، اس طرح کی جو سورہ ہم روٹین میں پڑھتے ہیں، سورہ رحمان، سورہ مزمل ہے۔ تو کوشش کریں کہ 5 منٹ نکالیں اور تھوڑا تھوڑا سا حافظے سے بھی تلاوت کریں اور دیکھ کر بھی کریں۔ اور آپ کی جو بک ہے، بک جو لوگ لے چکے ہیں بک، ان کے پاس ایسی موجود ہوگی، جن لوگوں نے پرنٹ کی ہے وہ بھی کافی حد تک سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارے اخبار وغیرہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ سارے اس بک میں ہے، اسے بھی دیکھ کر پڑھ لیجئے۔ ایک اور کام آپ کر سکتے ہیں کہ ان کی یہ جو ریکارڈنگ ہے اس کو بھی آپ سن سکتے ہیں، ویڈیو سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے ساتھی سے سوال کیجئے۔ گروپ ہمارا ماشاءاللہ بہت اچھی سے طریقے سے جا رہا ہے آگے، ضرور پارٹیسپیٹ کریں، جو ہم ایکٹیویٹیز دیتے ہیں ان کو ضرور کوشش کیا کریں کہ ضرور کریں، بہت فائدہ ہوتا ہے اس کا۔ اسی طرح سے ایک کوشش اور کرنی ہے کہ نماز میں مختلف سورت کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ کو منتخب کیا گیا، اللہ رب العزت نے قرآن سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے آپ کا انتخاب کیا، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ اپنی روزانہ کی دعاؤں میں ایک دعا کو شامل رکھیے، ربی زدنی علما، اور دعا کیجیے کہ اے اللہ قرآن کی اس کلاس کو سیکھنے اور سکھانے میں ہماری مدد فرما۔ یہ دیکھیے جب ہم تعوذ اور سورہ فاتحہ مکمل سورہ فاتحہ سیکھ لیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ قرآن مجید میں آنے والے 9,000 الفاظ ہم سیکھ جائیں گے۔ اب یہ جو تمام الفاظ ہیں اس میں دیکھیے گا اللہ زینہ بھی ہے، من بھی ہے،
ये आई थिंक जो स्लाइड है वो मूव नहीं करनी है, शायद मेरी तरफ से कोई मसला है। बाकी काइंडली ये सिस्टर मुझे बताइएगा, कोई और जी मेरे सिस्टर पास भी मूव नहीं कर रही है स्लाइड। आपके पास स्लाइड नहीं है? अभी आपको सूरह फातिहा की स्लाइड भी नजर आई? नहीं। चलिए मैं हम इसको दोबारा से शेयर कर लेते हैं। फिर मुझे बताइएगा काइंडली, अब आपको नजर आना शुरू हुई स्क्रीन? जी, जो फर्स्ट पेज है वो आ रहा है नजर। आओ ठीक है, कुरान मैं समझे। हाँ जी, मैं इसको स्लाइड शो पर ले जाती हूँ, तो फिर मुझे आप काइंडली दोबारा से बताइएगा। जी जी अब बताइएगा सिस्टर। नहीं, अभी वही पेज है, मूव नहीं कर रही। अभी ये 7 होमवर्क वाली नहीं आई आपको? नहीं, आओ कुरान समझे ही आ रही है, फर्स्ट पेज ही आ रहा है। चलिए मैं इसको दोबारा से एक दफा फिर कोशिश करती हूँ। आज ना हमारा नेट थोड़ा इशू कर रहा है। चलिए जी दोबारा से एक दफा इसको शेयर करके देख लेते हैं। सिस्टर आपकी स्लाइड नजर नहीं आ रही। जी वेट कीजिएगा। वेट, थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह नजर आ जाएगी अभी। हाँ जी इंशाल्लाह नजर आना शुरू हो जाएगी। जी अब बताइएगा सिस्टर। सिस्टर मूव नहीं कर रही, अभी फर्स्ट पेज ही है। सिस्टर अभी नजर नहीं। अब देखिएगा। जी मेरी तरफ भी नजर नहीं आ रही, काफी देर से मुझे फर्स्ट पेज ही है। आ रही। फर्स्ट पेज नजर आ रहा है आपका। सिस्टर स्लाइड नहीं आ रही। चलिए फिर एक दफा आ फिर जाती है, कर लेते थोड़ा हैं। सा वेट कीजिए, अभी आ हाँ जाती है। ठीक है, हम इसको जरा कर लेते हैं वेट। आप होस्ट को कहें वो शेयर कर लें अगर इशू है। आज एक्चुअली हफ्सा नहीं है हमारे साथ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इशू है। वो उनके पास स्लाइड्स थी ना। चलिए 1 मिनट में इसको दोबारा से कर लेती हूँ ताकि इंशाल्लाह सबको सिस्टर स्लाइड रीज्वाइन कर लीजिए, लीव करके रीज्वाइन कर लीजिए। रीज्वाइन करने में थोड़ा सा इशू हो जाएगा। ओके जी। शायदा अभी यासीन, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आपका हैंड रेज है। सिस्टर शायदा यासीन, आप कुछ कहना चाह रही हैं? अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, ये चेंज नहीं हो रहा अभी तक, आपका फर्स्ट पेज ही आ रहा है। आओ कुरान आज ये समझे। कोशिश मैं कर रही हूँ कि ये हो जाए ठीक, इंशाल्लाह हो जाएगी। इंशाल्लाह। जी अब बताइएगा मुझे। जी, आज का सबक जी चेंज हुआ आज है, का सब आज का सबक। चलिए ठीक है, फिर हम इसको आज मेरा ख्याल है ऐसे ही हमें करना पड़ेगा। स्लाइड शो पे नहीं ये जा रही है, तो हम आज इसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं। ठीक हो क्या जी? क्योंकि मैं इसको स्लाइड शो पर लेकर जाती हूँ तो वो स्लाइड शो हो नहीं रहा। जी अब चेंज हो गया है, अब सूरह फातिहा 4 और 5 आयत आ गई है। ठीक हो गया ग्रामर और जी। नकात ये पूरी स्लाइड अब आ ठीक गई है, है। अब तावुज़ और सूरह फातिहा की आपको नजर आ रही है? जी, सूरह फातिहा वाला पेज है, आया नंबर 4-5 जिस पे लिखा हुआ है ना, और ग्रामर और नकात की तालीम, ये वाला पेज आ रहा है। अच्छा जी, आपको 1 मिनट रुकिएगा। इससे नेक्स्ट स्लाइड आनी चाहिए। जी अब देखिएगा, अब सूरह फातिहा नजर आनी शुरू हो गई आपको? सूरह नो, फातिहा अभी पूरी नहीं आ रही है नहीं पूरी मैम। पूरी हमें आज पढ़नी की नहीं है। आज हमने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तक पढ़नी है। नहीं नहीं, वो नहीं आ रही मैम, वो नहीं वो आ रही। आप सीखेंगे ही तालीम और शौक, ये वाली स्लाइड है। अच्छा चलिए। फिर हम इसको ऐसे ही देख लेते हैं आज। अब शो हो रही है? नो। नहीं, अभी भी नहीं हो रही।
सिस्टर्स के बियर कीजिएगा आज, क्योंकि ये मसाइल हो जाते हैं सम टाइम ना, नेट पे इशू हो जाते हैं, तो अभी इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। हाँ, अब देखिएगा सिस्टर मैमूना, मुझे बताइएगा। जी अब आ गई है, अब आ गई है। आ गई है। अब हमें सूरह थोड़ा फातिहा। सा ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा कि हम इस स्लाइड को ऐसे साइड से मैं ऑन ऑफ कर लूंगी, तो हम इसी तरह से आज लेके चलेंगे। सिस्टर सुमेरा हमारे साथ है। मैं चाहूंगी सिस्टर आप आयत नंबर 5 तक इसकी तिलावत कर लीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم अल्हम्दुलिल्लाह, सदक़ल्लाहु अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी तजवीद की टीचर हैं। आप लोगों में से जो लोग तजवीद की क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनको अंदाजा भी हो गया होगा, ये हमारी सिस्टर हैं जो तजवीद पढ़ाती हैं। ये मेरी भी टीचर हैं। चलिए जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज हम शुरू कर रहे हैं मालिकी यौमिद्दीन से। मालिक हम उर्दू में भी यूज करते हैं, मालिक। यौम भी उर्दू में यूज हो जाता है, दिन। अद-दीन, अब दीन जो है ये है बदला। इसके माना भी देखते हैं और हम देखेंगे कि इसके क्या क्या माना बन सकते हैं। अब इसमें मालिक को देखिएगा, मालिक, इससे मिलते जुलते 4 अल्फाज हम पढ़ेंगे। ये हमारा पहला लफ्ज है मालिक। ठीक है, आपने उर्दू की तरह इसको याद रखना है। मालिक किसको कहते हैं? ओनर को कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम लोगों का मालिक है, बल्कि तमाम जहानों का, हर चीज का। जितनी भी मखलूकात है, जो देखी जाए ना देखी जाए, सबका मालिक व खालिक अल्लाह है। ठीक हो गया जी। और है इसके बाद अगला हमारा लफ्ज यौम, जैसे हम कहते हैं यौम ईद या यौम आखिरत। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों अल्फाज हमारे जाने पहचाने हैं, ये इसमें हमारे लिए कुछ नया नहीं है। ठीक हो गया जी। और इसको हम इस तरह से भी देख लेते हैं कि हम हर बार देखते हैं कि जो जिन अल्फाज के माना बनते हैं या जिनके मुज़क्कर मुअन्नस या जिनकी वाहिद जमा बनेगी, उसको भी हम साथ साथ देखें। यौम, दिन, अय्याम। अय्याम भी हम उर्दू में यूज करते हैं। ठीक है। और इसी तरह से यौम, अय्याम, ये अल्फाज कुरान मजीद में 405 मरतबा यूज हुए हैं। ये जो वाहिद जमा है इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, ये काम आती है। ये एक तो ये कि हमारी वोकैबुलरी में भी इजाफा होता है। दूसरे ये कि आपको बाज़ दफा होमवर्क में भी पूछ लिया जाता है कि चलिए जी यौम का जरा जमा बता दीजिए। 3 ऑप्शन दे दी जाती हैं, फिर एक ऑप्शन आपने सिलेक्ट करनी है। तो कोशिश किया करें कि जो स्लाइड्स में वाहिद जमा बताई जाए उनको भी याद रखा करें। अब है दीन। दीन के 2 माना है, ये आपने पक्की बात याद रख लेनी है। एक है बदला और दूसरा है जिंदगी का निजाम। बदला क्या है? तो हम दुनिया में करेंगे, उसका बदला आपको आखिरत में मिलेगा। और ये जो जिंदगी का निजाम सारा चल रहा है, इसका एक माना दीन इस्लाम भी लिया जाता है। इन दोनों माना को हमने अच्छी तरह से ज़हन नशीन रखना है, याद रखना है। एक और चीज हमें पता चली कि अल लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास इस्म है। अल और तनवीन हमारे पास जहां भी कुरान मजीद में हमें नजर आए, आंख बंद करके हम कह सकते हैं कि ये इस्म है। ठीक हो गया जी। और ये लफ्ज कुरान मजीद में 92 मरतबा यूज हुआ है। अब हम देख लेते हैं गहरे तसव्वुर एहसास के साथ कि जो हमने मुताला किया उस पर गौर फिक्र करते हैं। इसमें दुआ, एहतिसाब, प्लान और तबलीग पर गौर करेंगे कि हमने जो आज पढ़ना है, जो पढ़ रहे हैं, उसका माना क्या है। दीन के 2 माना है, यानी कि बदला। अच्छे काम का अच्छा और बुरे काम का बुरा बदला। ये तो दुनिया का वैसे भी उसूल है ना, अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा ही बदला मिलेगा। इसी तरह से जिंदगी गुजारने का तरीका, इस्लाम ने हमें हर तरह से जिंदगी गुजारने का मुअस्सर निजाम दिया। और आप देखिए कि कुरान मजीद में हर तरह के मसाइल भी बता दिए गए, यानी कि पूरा एक मुकम्मल निजाम है, निजामे जिंदगी इस्लाम। तो इस अब हमने दीन के 2 माना आज से याद कर लिए। दीन के 2 माना क्या है? एक बदला और दूसरा जिंदगी गुजारने का तरीका।
اس میں پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ جب قیامت آئے گی تو اللہ ہی سب کا مالک یعنی کہ اونر اور اسی کی حکومت ہوگی. اللہ ہی مالک ہے, اسی کی حکومت ہوگی اور وہی سب کے درمیان فیصلہ کرے گا, انصاف کرے گا. آج بھی مالک اللہ ہی ہے مگر اس نے اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے انسانوں کو کچھ اختیارات دے دیے ہیں. اس دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا, یعنی کہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا حکم ہوگا. جس کے لیے جو حکم ہو جائے گا بس وہ اس کے لیے نافذ کر دیا جائے گا ہمیشہ کے لیے, جیسے جنت اور جہنم کا فیصلہ. تو یہ حتمی جس کو فیصلہ کہتے ہیں نا, بس وہ ہو جائے گا. کوشش کرنی ہے کہ آج سے ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں. دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوارنا, آخرت کی تیاری کرنا. کس دن کے لیے؟ آخرت کے دن کے لیے. یعنی کہ جو بھی ہم کام کریں وہ ہم نے اس بات کو ذہن نشین رکھتے ہوئے کرنا ہے کہ اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا. یہاں ہم ساتھ ساتھ کچھ عادات بھی سیکھ رہے ہیں. ہم نے کہا تھا ہم نے 12 عادات سیکھنی ہے, جس میں سے ہم نے تعوذ سے اپنی پہلی عادت سیکھ لی, اور جب ہم نے تسمیہ پڑھی تو بسم اللہ سے ہماری دوسری عادت ہوئی. دوسری عادت کون سی ہے؟ کہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیجئے. اس کے بعد ہماری تیسری عادت بنی الرحمن الرحیم سے. وہ کیا عادت ہے؟ کہ اللہ رب العزت کے بارے میں مثبت سوچ رکھنی ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہمیشہ بہتری والا معاملہ فرماتے ہیں. ہمارے ساتھ کوئی کسی قسم کا کچھ ذرا سا مسہیپ ہو جائے تو ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہی ہونا تھا. تو اس طرح کے کفریہ اور شرکیہ جملوں کو بولنے سے پرہیز کیجیے گا. اس کے بعد ہے الحمدللہ. الحمدللہ میں ہم نے کیا عادت سیکھی کہ ہر تمام کی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں. پھر ہم نے کہا رب العالمین, تمام جہانوں کا رب, یعنی کہ عالمین سے ہم یہ بات بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کائنات پر غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے چیزوں کو کس کس طرح سے تخلیق فرمایا. اب ہم دیکھتے ہیں مالک یوم الدین, یعنی کہ مالک ہے کس چیز کا؟ مالک ہے بدلے کے دن کا, یعنی کہ آج کا مالک بھی اللہ ہے اور کل کا مالک بھی. یہاں پر ہماری ایک اور عادت پختہ ہو گئی کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے آخرت کو ذہن میں لا کر آخرت کی فکر کرتے ہوئے کرنا ہے. اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا کہ ہم انشاءاللہ بہتری کی جانب ہی جائیں گے. اس دن کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, وہاں صرف وہی سفارش کرے گا جس کو اللہ رب العزت اذن دیں گے, اجازت دیں گے. اور اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ قیامت کا دن بڑا ہی بھیانک ہوگا. اتنا بھیانک کہ انسان اپنے خونی رشتے جیسے اپنے بیٹے, بیوی, بہن, بھائی, شوہر, ماں باپ, ان کو دیکھ کر بھاگے گا. بس اس دن ہر ایک کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوگی, بس اپنی پڑی ہوگی جس کو کہتے ہیں نا. تو کوشش کرنی ہے کہ آج ہی ہمارا عمل ایسا ہو کہ آج ہم یہ نہیں کہ اپنے رشتے جو خونی رشتے ان کی فکر میں اپنی آخرت برباد کریں. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ ہماری آخرت انشاءاللہ سنور جائے. اس آیت کو پڑھتے ہوئے یہ امید بھی رکھنی ہے کہ اللہ قیامت کے دن ہم پر رحم فرما کر ہماری اچھائیوں کا بدلہ اچھا ہی دے گا. اور اسی طرح سے ڈر بھی رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ہمارے برے اعمال کی سزا مل جائے. تو ہم نے یہ بات بھی, میں نے کسی بھی ایک کلاس میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت میں داخلے کی دعا کرنی ہے اور 3 مرتبہ آپ نے جہنم سے آزادی کی دعا بھی کرنی ہے. اللہ نے بغیر پوچھے ہمیں مسلمان بنایا, یعنی کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے. اس بات پر ہم کرتے ہیں الحمدللہ. اللہ رب العزت کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ہے کہ صرف اور صرف اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے ہمیں مسلمان بنایا. تو اب ہم معافی کا سوال بھی اللہ سے کرتے ہیں, جنت کا سوال بھی اللہ سے کرتے ہیں, اور یہ امید اور اس یقین کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ضرور قبول فرمائیں گے. اور یہاں پر ہماری عادت نمبر 7 کوشش ہے کہ ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کر کیا جائے اور بیکار کاموں میں اپنا وقت ضائع نہ کیا جائے. اب آپ کا ٹائم ہے, ایک دفعہ اسی شرح کے ساتھ اپنے ذہن میں اس آیہ مبارکہ کو لائیے اور پریکٹس کیجئے. مالکی یوم الدین, اتنا اونچا آواز میں پڑھ لیجئے کہ آپ کو اپنے کانوں میں سنائی دے. یہاں پر لکھا ہوتا ہے علم, علم کا مطلب ہے سکھائیے, یعنی کہ جو سیکھا ہے سکھائیے دوسروں کو. مالکی یوم الدین. بالکل الحمدللہ. جی اگلی ہماری آیہ مبارکہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک, آج ہم دیکھیں گے ایا کے کیا معنی بنتے ہیں, یہ لفظ کس طرح سے بنا ہے. اس کا معنی ہے تیری ہی,
का को भी हम सीख लेंगे आज। ये जो का है, का क्या माना है, ये किस तरह से लफ्ज के साथ जुड़कर बनते हैं। नअबुदु, इंशाल्लाह अगली क्लासेस में हमें पता चलेगा कि ये जो नून है ये हमारी अपनी तरफ का इशारा है। हम इबादत करते हैं, बा और इया का तुझसे ही नस्ताइनु, हम मदद चाहते हैं। ये जैसे जैसे हम अपने अफ़ाल की तरफ बढ़ेंगे हमें पता चल जाएगा कि ये नस्ताइन और नाबुदु कैसे बना है। तो अभी के लिए हम इसको देखते हैं कि इया का को हमने किस तरह से पढ़ना है। इया और का, इया जो वर्ड है ये अलग से यूज नहीं हो सकता और जो का है वो भी इसी तरह से अलग नहीं यूज हो सकता। तो क्या, तो इसको हम कहते हैं का को हमने इया का तकिया बनाया है, क्योंकि का अकेला आ नहीं सकता तो पढ़ा नहीं जाएगा ना। तो इस जब जुमला के आखिर या जैसे कि काश आ जाए शुरू में तो वो थोड़ा सा कजालिका वगैरह में का आ जाता है, लेकिन ये कि इया के साथ का को हम इसलिए लगाएंगे, एक तो इसमें एम्फेसिस यानी कि ताकीद शामिल हो जाएगी और इसमें जो ही का तर्जुमा ये आ जाएगा कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत ही की इबादत करते हैं, किसी और की इबादत नहीं करते और इसी तरह से अल्लाह ही की मदद चाहते हैं। कुरान मजीद में इया का इसी तरह से 24 टाइम आया है लफ्ज। अब हम देखते हैं नाबुदु, नाबुदु किससे मिलता जुलता है, इबादत, आबद, आबिद, माबूद। इसी तरह के अल्फाज जो उर्दू से मिलते जुलते हैं उनको समझना भी आसान होता है और इंशाल्लाह ये जब हम पूरे पूरे टेबल करेंगे तो ये इसको और भी समझना आसान हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना याद रखिए कि नाबुदु में आइन, बा और दाल है। यही आइन, बा और दाल इबादत में भी है, आबिद में भी है, माबूद में भी है। तो इसको समझना मजीद आसान हो गया कि ये उर्दू से मिलता जुलता लफ्ज है, यकीनन इसमें इबादत की बात की गई। इबादत क्या है, अब हम देख लेते हैं इबादत क्या है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, दावत, नसीहत, जिहाद, यानी अल्लाह की इताअत में भरपूर कोशिश करना। शर्त क्या है, आपकी सही नीयत होनी चाहिए, यानी कि अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। नीयत अच्छी होगी तो इंशाल्लाह हमारे अमाल भी बेहतरीन हो जाएंगे। इल्म हासिल करना भी एक इबादत है, कमाना भी इबादत है, दूसरों की खिदमत करना भी इबादत है, मगर सबसे पहले नमाज, क्योंकि जिसने नमाज छोड़ दी उसने दीन को ढा दिया। नमाज मोमिन और मुशरिक में फर्क भी करती है, इस बात को याद रखना है कि नमाज सबसे पहले है। वाइया का वा और तुझसे ही, वा के माना अभी हम सिर्फ एक माना पढ़ रहे हैं, वा का, वा के और माना भी होते हैं, अभी हम सिर्फ वा का और माना याद रखते हैं। और तुझ ही से, अक्सर अल्फाज के शुरू में व और फा आएगा। जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी, हमने वा हुआ और फा हुआ के साथ टेबल भी किए थे ना, वा हुआ और वो हुआ बस वो। ये इसी तरह से कुरान मजीद में जहां जहां ये अल्फाज नजर आए कोशिश किया करें इसको अंडरलाइन कर लें। नहीं अगर मतलब आप इसको करना चाहते तो आप किसी पेज पर लिख लें कि ये मैंने आज इस पेज में इतनी मरतबा पढ़ा। इसका फायदा ये होगा जो आप सीख रहे हैं ना आपको बहुत खुशी होगी कि ये मैंने अल्फाज इतनी मरतबा आज कुरान मजीद में ढूंढ लिए। अब है नस्ताइन। नस्ताइन का लफ्ज भी कहीं कहीं हमारे उर्दू से मिलता जुलता, यानी कि इस्तिआनत, इयानत, औन, ताउन करना, मुआवन। ताउन जरा ज्यादा हम यूज करते हैं ना उर्दू में, ये वही ताउन करना भी एक तरह से मदद करना ही होता है ना, किसी के साथ हम मुआवनत करते हैं। तो ये नस्ताइन भी इसका मतलब है कि कोई बहुत अननोन सा वर्ड नहीं है हमारे लिए। ये हमारी उर्दू की कह लें कि हमारी खुशकिस्मती है कि उर्दू के बहुत सारे अल्फाज अरबी से मिलते जुलते हैं, बिल्कुल वैसे नहीं तो मिलते जुलते तो हैं, जिसकी वजह से हमें समझना मजीद आसान हो जाता है। और ये जो ना है, जैसे हमने नाहनु में ना पढ़ा, ये उसी तरह का ना है। इसको हम इंशाल्लाह अगले लेसन में सीखेंगे कि जो ना का इशारा ये हमारी तरफ नाहनु की तरह कैसे बन जाता है। अभी के लिए इतना याद रख लें कि आबुदु और इस ताइन के साथ हमने ना लगाया तो नाबुदु हम तेरी इबादत करते हैं, नस्ताइनु हम तुझसे मदद चाहते हैं। अब इसके जो हमने आया मुबारका पढ़ी है इसके बारे में भी देख लेते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, हम उसकी बंदगी करें यानी इबादत करें। अब इसमें हमने ये भी देखा था कि इबादत करना हमारा ये जो खास तौर पे नमाज है ये हम पर फर्ज की गई। और इसी तरह से जैसे इल्म हासिल करने के बारे में हमने सीखा कि ये इल्म हासिल करना भी एक इबादत है। तो इसमें ये कि सबसे पहले नियत कर लें, आपने जो भी काम करना है इबादत की नियत से करें, सवाब भी मिलेगा। काम हमारा ही बन रहा है, हमारे ही काम हो रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह सवाब और अजर का बाइस बनेंगे।
जैसे कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया सूरह ज़ुर्रियात में लिखेगा कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी ही इबादत के लिए पैदा किया है। तो हम पर लाजिम है कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी करें, इताअत करें, इबादत करें और इस नीयत से अपना हर काम करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इसे इबादत के दर्जे और अजर सवाब से लेता है इंशाअल्लाह। हमारी नीयत ऐसी होगी तो इंशाल्लाह हमारे हर काम में हमें इबादत की नीयत का सवाब मिलता रहेगा। इबादत का एक और माना, हम जुज़वी माना जो हम देख लेते हैं वो क्या है कि अल्लाह के हुक्म पर चलना, उसकी नाफरमानी से बचना, अल्लाह को एक जानना। अब इसके बाद आप देखिए जितने भी हमारे हम इनको पढ़ते हैं अरकान, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना, हज करना, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना, इसके बाद इल्म हासिल करना, हलाल कमाना, दूसरों की खिदमत करना, यानी कि ये सारे काम करने तो है हमने, ये हमारे अपने मतलब ये दुनियावी काम है। कौन से जो हलाल कमाना वगैरह, खिदमत करना, खुश अखलाक से पेश आना, नियत हम इबादत की कर लेंगे तो इसमें ये डबल सवाब या जितना अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे बढ़ा दे। इन सब में से नमाज को बड़ी अहमियत हासिल है, क्योंकि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी, नमाज छोड़ने वाला काफिर बन जाता है और दीन को गिरा देता है। तो अगर आप में से, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह सारी बहनें नमाज की पाबंदी करती होंगी, अगर नहीं करते तो आज से अभी से नियत कर लें कि इंशाल्लाह हमने नमाज नहीं छोड़नी, नमाज हमने जरूर बिल जरूर अदा करनी है। हम इतने कमजोर हैं कि हम अल्लाह की मदद के बगैर अपनी प्यास तक नहीं बुझा सकते, तो अल्लाह की मदद के बगैर हम अल्लाह की इबादत कैसे कर सकते हैं। इसीलिए इस एहसास के साथ ये आया मुबारका पढ़िए कि ए अल्लाह, इस नमाज को और इसके बाद हर काम को करने में मुझे तेरी मदद चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद शामिल हाल रही तो इंशाल्लाह इस दुनिया में भी और आखिरत में भी बेड़ा पार है। हर मुश्किल और हर परेशानी में अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद चाहिए। खास तौर पर खुशियों के मौका पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा किया करें, ताकि वो जो खुशियों के मौके हैं उनमें भी हम अपनी नमाज, अगर रमजान है तो रमजान में रोजों का, इन चीजों का ख्याल रखें ताकि हम इबादत को पीछे नहीं कर दें, क्योंकि दुनिया ये मुख्तसर सा हमारे पास टाइम है जितना हम दुनिया में गुजारेंगे। तो जो हमारी आखिर की आखिरी जो जिंदगी, उखरवी जिंदगी जिसको कहते हैं, उसके लिए हमने मेहनत करनी है। इंशाल्लाह ये थोड़ी सी हमारी की हुई मेहनत हमारे काम आएगी आखिरत में। और तेरी ही इबादत के लिए हमें तेरी ही मदद चाहिए, ऐसी इबादत जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद आ जाए। हम इसमें एक दुआ भी करते हैं कि अल्लाह मुझे ऐसा बना दे कि मैं तुझे पसंद आ जाऊं। यहाँ पर हमारी आदत नंबर 8 बन रही है कि हर काम में इबादत की नियत करनी है। ये कहाँ पर बन रही है? इय्याका नअबुदु। दरअसल इंसान के दो हिस्से हैं, एक जिस्म एक रूह, ठीक हो क्या? जिस्म को खाना चाहिए और रूह को इबादत। अब आप इसको, ये जो पॉइंट है ना, इसको भी नोट कर ले। जिस्म को क्या चाहिए? खाना चाहिए, और रूह को क्या चाहिए? इबादत। जब तक अल्लाह की सही तरीके से इबादत नहीं करेंगे, रूह को सुकून नहीं मिलता, यानी इसको कामयाबी नहीं मिल सकती। और अगर दुनिया में कुछ मिल भी जाए तो सुकून कम अज कम नहीं मिल सकता। इस बात को ज़हन नशीन रखना है। इसके बाद व इय्याका नस्तईन से हमारी आदत नंबर 9, हर काम में अल्लाह की मदद मांगना। किस तरह? जैसा कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मजीद जितने भी हमारे अंबिया हैं उन सब ने मांगा, यानी कि दुआएं दुआएं सीखने की कोशिश करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारा कोर्स है इसमें भी, और इसके बाद और जो कोर्सेज है ना, इनमें आप देखिएगा कि बड़ी एक प्यारी बात ये है कि हम बहुत सारी दुआएं भी सीख लेते हैं। वो सारी दुआएं जो सही अहादीस से भी ली गई हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिखाई हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और ऐसी दुआएं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगा करते थे। तो इंशाल्लाह ये जो हमारा कोर्स जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हमें बहुत सारी दुआएं भी याद होती जाएंगी। आपका टाइम है, तसव्वुर और एहसास और दुआ के साथ एक मरतबा प्रैक्टिस कर लीजिए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझ ही से हम मदद चाहते हैं। अच्छा जी सिस्टर्स, अब मुझे बताइए, ये जो हमने 2 आया मुबारका पढ़ी है, इनके बारे में किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर लीजिए। इसके बाद हम इंशाल्लाह ग्रामर की तरफ बढ़ जाएंगे।
1-2 मिनट हम लेते हैं, तो फिर इंशाल्लाह हम ग्रामर का पोर्शन करेंगे। जी, सिस्टर नौरीन राना हैंड रेज किया। सिस्टर जी अनम्यूट कीजिए खुद को। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सिस्टर। सिस्टर इसमें जैसे इया का मतलब है सिर्फ तेरी ही, हम्म। और ये अभी है लिखा हुआ है इया का, तो उसमें तुझसे, उसकी जगह भी हम तेरी ही कह सकते हैं, सिर्फ तेरी ही बात करते देखिए हैं। देखिए, पता है क्या, थोड़ी सी हमारी उर्दू की ना मजबूरी हो जाती है। हम ऐसे भी कहते तेरी ही हम मदद चाहते हैं, तेरी ही हम इबादत करते हैं। अब इसके बजाय तुझ ही से मदद मांगते हैं, ये सुनने में, बोलने में, रवानी में जरा ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसका असल माना वो जो ही वाला माना वो है इसमें ही। ठीक है, ईया का को हम आज सीख लेंगे कि ये का तेरी कैसे बन जाता है। इसको भी हम इंशाल्लाह, ये जो हमारा ग्रामर का पोर्शन है इसमें हमें सीख लेना है। एक और सिस्टर ने हैंड रेज किया था। जी सिस्टर, अगर कोई क्वेश्चन है तो कर ले, नहीं तो फिर मैं अगली स्लाइड शेयर कर लूँ। सिस्टर फारिया या फारी खान शायद ऐसा हाँ, नेम था। एक सिस्टर हैंड रेज मुझे नजर आया था। जी वो मैंने किया था, मैंने उनसे वही वाला सवाल करना था जो उन्होंने किया। ठीक हो गया। और ये ना, ये जो जैसे हमने आज सीखा है ना ईशा का, अभी हम जो अगला टेबल करेंगे ना उसमें से आप देखिएगा, जब हम का को सीख लेंगे ना आपको फौरन समझ में आ जाएगी कि ये जो का था हम इसको अलग तो यूज कर नहीं सकते थे। अब इसका तकिया बनाने के लिए ईशा को यूज कर लिया ताकि इस का को हम बढ़ा सके अपनी आया मुबारका में। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जाहिर सी बात है कुरान मजीद पे ऐसे तरह हम समझने के लिए अल्फाज के टुकड़े वगैरह बना लेते हैं, क्योंकि हमने तब्दीली तो इसमें करनी नहीं है। कुरान का मोजज़ा है, कुरान का एजाज है कि कुरान मजीद में तब्दीली नहीं होगी। हम इसको इस तरह से सीखेंगे कि हम इसके अल्फाज को अलग अलग करके टुकड़े बना के इनके माना समझ के हम इसको सीखते जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए जी, सबक बी यानी कि 3B में आज हमने क्या सीखना है। जैसे हमने बात की थी हुआ, वो, तुम, वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। ये तो हो गया जैसे हम कहें कि जैसे वो एक, जैसे समझ लें हम नाम से शुरू कर लेते हैं, हम बुरहान कहते हैं। वो एक लड़का है बुरहान, ठीक है, उसका नाम बुरहान है। अब ये जो है ना वो एक लड़का है, जहां तक वो वाला हम यूज कर लेते हैं। इसके आगे जो बात हमने रवानी में करनी, इसके लिए हमें उस लगाना पड़ेगा। उसका नाम बुरहान है। उसके बाद आप देखें कि उसका कद लंबा है, या इस तरह से जितनी भी हमने बात करनी सारी हमने उस वाला सीगा यूज करना है। हम ये नहीं कहेंगे बुरहान एक लड़का है, बुरहान लंबा है, बुरहान पढ़ता है। हम ये नाम नहीं लेंगे ना, हम जमायर को इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से उर्दू में जमायर इस्तेमाल किए जाते हैं बिल्कुल इसी तरह से अरबी में यूज होते हैं, और इंग्लिश में भी यूज होते हैं। जैसे हम कह लें कि ही, और इसी तरह से दे हम यूज करते हैं। लेकिन जब हम उसका चलिए हम कहते हैं हिज या हिम या फिर देयर, तो उसी तरह से आज हमने ये सीख लेना है हु, हुम, का, ये, तुम, ना। थोड़ा सा सुनने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब हम इतनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इतने टेबल इसके बनाएंगे कि ये अजबर हो जाएंगे इंशाल्लाह। मुस्कुराते हुए हमने ग्रामर करनी है। ये स्माइली आपसे कह रही है कि आप सब मुस्कुराइए और अपने हाथ बिल्कुल फ्री कर लीजिए, क्योंकि अब हमने टीपीआई का इस्तेमाल करना है। टीपीआई यानी कि सारे वजूद को इस्तेमाल करना है। जी सिस्टर फातिमा। सिस्टर मैं करा दूं टीपीआई? क्या ये जो बिल्कुल करवाइए। सोचिए, हाँ जी, देखिए, देखिए, बोलिए, बोलिए, बताइए, बताइए, ठीक है, दिल से कीजिए, दिल से कीजिए, बिल्कुल, मिल के कीजिए। मिलकर कीजिए। मिलकर कीजिए का मतलब ये कि अपने साथ किसी अपने बेटे को, भाई को, बहन को, किसी को भी अपने साथ मिला लें, तो बड़ा अच्छा सा ये कि टेबल हम कर सकते हैं। एक बार आप करें, एक बार उनसे सुने। ग्रामर हम कैसे करेंगे? टीपीआई के साथ, जिसके सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। अल्लिमू यानी कि दूसरों को भी सिखाइए, खुद भी सीखिए। और सीखना काफी नहीं है, ये इस्लाम की खूबसूरती है कि सिर्फ खुद सीख लेना काफी नहीं है, दूसरों को भी सिखाना है। ये हमारा पॉकेट कार्ड यानी कि जो अल्फाज वानी की शीट है, इसे बड़ी अच्छी इन्होंने एक टिप दी हुई कि अपने फ्रिज या दरवाजे या डेस्क पर कहीं पर लगा दें,
तो आप आते जाते इसको देखें, पढ़ें, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं नमाज के बाद थोड़ी सी देर के लिए। अभी हमने जैसे आज हमारा तीसरा लेसन कवर हो रहा है, आप थर्ड लेसन तक इसको पढ़ लीजिए, कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो है ना ग्रामर और ये दोनों चीजें इस तरह की अब मैं आपको इसमें से बता भी, जिन लोगों के पास तो ये है, जिन्होंने ले लिया उनको समझ आ जाएगी, और जिन लोगों ने प्रिंट किया है इसको उनको पता चल जाएगा कि देखिए सबक नंबर 1, सबक नंबर 2 और सबक नंबर 3 तक जो अहम अहम उसमें से चीजें थी वो सारी इस कार्ड में शुरू में बता दी गई, कि आप पूरी बुक ना भी खोलें, इसमें से सिर्फ उन अल्फाज को देखें, पढ़ें, तो इंशाल्लाह आपका जो एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरे ये कि रिवीजन हो जाएगी। हमने देखा था कि इस्म की निशानी क्या है। इस्म की निशानी अल और तनवीन, यानी कि कुरान मजीद में जहां भी अल्फाज के साथ अल लगा हो या तनवीन लगी हो, हमने बता देना है कि ये इस्म है। फिर हमने इसमें सीखा जमा बनाने का तरीका, यानी कि अगर दो पेश वाला लफ्ज हो कि जमा बनानी है, हम वाउ नून का इजाफा कर देंगे, ठीक है। जैसे मुस्लिम है, अगर मुस्लिमुन है तो हम उसको मुस्लिमूना कर देंगे, और अगर तनवीन में 2 ज़ेर और 2 ज़बर है, मुस्लिमन मुस्लिमिन, तो दोनों की जमा में हमने या नून लगा देना, मुस्लिमीना मुस्लिमीना। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए जी, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला टेबल है हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। आप लोगों ने पहले भी किया ये टेबल, मैं चाह रही हूँ कि आप में से कोई एक पार्टिसिपेंट को, एक सिस्टर हैंड रेज करके तो ये वाला टेबल मेरे साथ दोहराएं। ये सिस्टर फारिया ने सबसे पहले हैंड रेज किया जी। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। हम सब। अच्छा सिस्टर, इशारे भी करने हैं, ठीक है। अब ये जो और सिस्टर्स ने हैंड रेज किए, इंशाल्लाह इनसे फिर मैं आगे जाती हूँ, तो आगे जो हमारे टेबल वगैरह होंगे वो हम इनसे करवा लेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छा जी, ये वाली स्लाइड हम हर बार देखा करेंगे अपनी ग्रामर में कि अल्फाज यानी कि कलमे की 3 इकसाम होती हैं, इस्म, फेल, हर्फ, ठीक है, भूलना नहीं इसको। इस्म, फेल, हर्फ। इस्म किसको कहते हैं? किसी का नाम और सिफ्त, यानी कि 2 चीजें हो गई। इसी तरह से फेल किसको कहते हैं? जिसमें काम के करने या होने का पता चले और इसमें जमाना भी पाया जाए। जमाना कैसे? जैसे माजी का जमाना, मुस्तकबिल का, हाल का, ये जमाने पाए जाते हैं ना, यानी कि काम का करना या होना या जमाना पाया जाए। और इसके बाद एक तीसरी चीज हर्फ। हर्फ क्या है? जो इस्मों और फेलों को आपस में मिलाए। अभी हमने आया मुबारका में पढ़ा ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये जो वा था ना, वा, ये हर्फ है। आप देखिए इन्होंने इस्म और फिलों को आपस में मिला दिया, का था उसके बाद वा लगाया तो अगले वाले इस्म के साथ मिला दिया। क्यों? क्या? अब हर एक के बारे में हमने 2-2 बातें सीख ली। इस्म के लिए किसी का नाम और सिर्फ, जैसे नाम किताब मक्का, जैसे मेरा नाम नौरीन है और मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये मेरा नाम भी हो गया, सिर्फ ये दोनों चीजें अस्मा में आ गई। इसके बाद फेल, यानी कि फेल में जिसमें काम के करने या होने का पता चले, और जमाना, 2 चीजें। हरूफ जो इसमों और फेलों को आपस में मिलाए। अब ये आगे आगे इंशाल्लाह हमारे ये जो हरूफ के साथ टेबल की प्रैक्टिस है, इसमें भी बहुत कुछ हम सीखेंगे। इस्म क्या थे? जैसे मुस्लिम, मुमिन, सालेह, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक। और इसमें हमने सीखा था कि जब तनवीन हो, तनवीन गिराने के लिए हमने अल लगाने के लिए तनवीन को गिराना है, यानी कि मुस्लिमुन को जब हम अल लगाएंगे तो ये अल मुस्लिमुन नहीं होगा, ठीक हो क्या? ये अल मुस्लिम हो जाएगा। मुमिनुन है तो अल मुमिनु, स्वालिहुन अस्वालिहु, काफिरुन से अल काफिरु, मुशरिकुन से अल मुशरिकु। ये बात बहुत अच्छे से आपने ज़हन नशीन करनी है कि जब अल लगाएंगे तो तनवीन गिर जाएगी। और ये था हमारा इयादा। आज के सबक में हमने क्या करना है, ये जो पिछला सबक हमारा गुजर गया, 2 सबक हमारे गुजरे, उसमें हमने पढ़ लिया वो सब, आप, मैं, आप सब और हम सब। अब ये जो हमने सीखे थे, ये इनको कहते हैं ज़माइर मुनफसिला, ठीक है, इनमें फासला होता है, यानी कि हुआ के बाद मुस्लिम, फासला आ गया दोनों अल्फाज में, दोनों अस्मा में। हुआ अलग लिखा गया, इसी तरह से मुस्लिम अलग लिखा गया, दोनों में फासला, इनको कहते हैं डिटैच, ठीक है, ये डिटैच वाले प्रोनाउंस हैं। और आज जो हमने पढ़ने, ये अटैच, यानी कि ये जुड़ जुड़ के आते हैं। ये क्या माना बनेंगे? उसका सॉरी उसका, उन सब का,
آپ کا, میرا, آپ سب کا اور ہمارا, انہی الفاظ کی ہم نے عربی سیکھ لینی انشاءاللہ. اور آپ دیکھیے گا یہ کتنی آسان ہے. یہ ہوگی ہو, کا, یہ, کم اور نا. اب یہ جو سسٹر جنہوں نے پہلے ہینڈ ریز کیا تھا وہ ٹیبل کو پڑھیے گا, ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا. میں پڑھوں؟ جی پڑھیے. ہو, ہم, ہو ان کا نہیں اس کا, جی ہم ان سب کا آپ کا, یہ میرا جی جی بالکل. ہم آپ سب کا, یہ کیا ہے نہیں پڑھا جا رہا, نا کہتے ہیں ہمارا. ٹھیک ہے, یعنی ہمارا, کہ نہ اس ہمارا. اس کی چیزوں کے بارے میں ہم دیکھیں گے. یہ ٹکڑے قرآن مجید کی تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اب آپ دیکھیے گا, الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ, یہ وہی والا جو ہم نے آج ٹیبل کرنا ہے. عبدہ لدنہ, یہ جو ہو ہے یہ بھی وہی ہے, لہو. اسی طرح سے آپ دیکھیے گا لہم, جہاں پر یہ ریڈ ایرو سے آپ دیکھیے گا کہ یہ ہر لائن میں آپ کو مل جائیں گے. جتنے بھی ضمائر ہیں کوئی نہ کوئی ایک ہوتا ہے ہر لائن میں. اب ان کو ہم ٹی پی آئی کے طریقے سے پورے شوق کے ساتھ سیکھ لیتے ہیں, اور ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک اسم ملا لیتے ہیں. جیسے رب, رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والا. رب پالنے والا. اب ہم ایک نئے دور میں, ایک نئے مطلب پوری لسٹ میں نئے الفاظ میں ہم داخل ہو رہے ہیں. ہم اس کو سیکھیں گے. جب ہم سیکھ لیں گے تو ہم اس کے ساتھ کوئی بھی ایک لفظ ملا کے پورا ٹیبل بنا سکیں گے. رب کے ساتھ ہم نے پریکٹس کرنی ہے. رب کا لفظ قرآن مجید میں 199 مرتبہ آیا ہے, یعنی کہ سبق نمبر 4A جب ہم کریں گے نا تو اس میں, اور اس سبق نمبر جو 3A ہے 3B, ان کو ملا کے 772 الفاظ ہم نئے سیکھ لیں گے جو قرآن مجید میں ہمیں تقریباً ہر لائن میں یا ہر دوسری تیسری لائن میں ملتے جائیں گے انشاءاللہ. اب ہم ہو کے ساتھ جوڑیں گے رب. ٹھیک ہے, ربو اس کا رب, ربوہم ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہم سب کا رب. یعنی پھر سے اس کو دیکھتے ہیں, ربوہ اس کا رب, ربوہم ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب. ٹھیک ہو گیا؟ ترتیب سیم وہی ہے, ہوا, ہم, انتا, انا, انتم, نحنو, ربوہ, ربوہم, ربو کا, ربی, ربکم, ربونا. ٹھیک ہے, یہ ہماری ترتیب اسی طرح سے رہے گی. اس کو آپ نے عدل بدل نہیں کرنا. پہلے دو غائب کے سیگے, ربوہ, ربوہم, اس کے بعد آپ کی اور میری بات, آپ کا رب, میرا رب, پھر آپ سب کی بات اور ہماری بات. جی سسٹر فاریہ کا ہینڈ ریز ہے. جی سسٹر پوچھیے گا, کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی میں نے پوچھا تھا کہ جیسے پچھلے والے ٹیبل میں ہوا کی جمع ہوں بنی تھی, تو یہاں ہو کی جمع ہوں کیسے بن رہی؟ یہ ہمارے لیے آسانی ہے. ایک لفظ سیکھتے ہیں اور الحمدللہ بہت سارے الفاظ اسی طرح کے آ جاتے ہیں, اس سے ملتے جلتے آ جاتے ہیں, اور ہمارے لیے بڑی آسانی ہے. اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ جو یا کا تھا نا, تیری ہی, اسی طرح سے ربو کا, یہ جو کا ہے کا, یہ الگ نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, وہ جو الگ سے کا الفاظ کے شروع میں آتا ہے اس کے معنی چینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو کا ہے ضمیر والا کا, ان کو اسما بھی کہیں گے. ٹھیک ہے, یہ اسما بھی ہے. نا, ان کو ہم اسما کہیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ ضمائر ہے. اچھا جی, اب آپ بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ ربی ہی, یعنی کہ ہو کی بجائے ہی بھی یوز ہو سکتا ہے, ہم کی بجائے ہم بھی, معنی میں کوئی چینج نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, یہ بولتے وقت آسانی کے لیے. بعض دفعہ ایسے آتا تھا کہ زیر آ گئی, جیسے رب کے اوپر پیش ہے تو ہم نے آگے پیش ملا لی. اب رب اس میں با کے اوپر جب زیر آ گئی تو ربی ہو پڑھنا مشکل ہے. ٹھیک ہے نا, ربی ہم پڑھنا مشکل ہے, تو ربی ہی, ربی پڑھ لیا جاتا ہے. معنی میں کوئی چینج نہیں آئے گا. یہ صرف ہو اور ہم کسی میں ہوگا اور کسی میں نہیں ہوگا. یہ بھی ایک آسانی ہے.
हम अपने डायलॉग की तरफ बढ़ते हैं। अब हम जैसे हमने कहा था मन हुआ वो कौन है, ठीक है, मन हुआ वो कौन है, हमने कहा था हुआ मुस्लिम, वो मुसलमान है। अब हम पूछ रहे हैं मन, मन हमने किसको भी देखा था, मन किसको कहते हैं, मन कहते हैं कौन को, ठीक है, मन कौन, रब्बुहु उसका रब कौन है, रब्बुहुल्लाह उसका रब अल्लाह है, मन रब्बुहुम उन सब का रब कौन है, रब्बुहुमुल्लाह। ये हमारे सवाल जवाब, यानी कि हमने एक टेबल सीखा, उसके साथ एक नया लफ्ज जोड़ा, मन हमारा सवाल बन गया, मन रब्बुहु, फिर इसका जवाब हमने दिया रब्बुहुल्लाह, यानी कि मन को हटा दिया, हु के बाद अल्लाह में अल्लाह का इजाफा किया। हमारा क्वेश्चन आंसर भी हमारे जहन में आ गया कि इस तरह से अरबी में सवाल जवाब होते हैं। और दूसरी जो हमें बात समझ में आई कि हु का जवाब हु से ही देना है, हुम का जवाब हुम से देना है, ठीक हो गया जी। अभी हम अगले वाले जो है वो भी देख लेते हैं। हमने कहा था का जवाब हमने कहा था अंता का जवाब अना से, बिल्कुल उसी तरह से मन रब्बू का, आपका रब कौन है, रब्बी अल्लाह मेरा रब अल्लाह है, मन रब्बुकुम आप सबका रब कौन है, रब्बुना अल्लाह मेरा हम सबका रब या हमारा रब अल्लाह है। और एक ये जो मजे की बात वो ये है कि ये हमारे जो कब्र में सवाल होने उसमें से एक सवाल ये है, मन रब्बू का पूछा जाएगा तेरा रब कौन है, तो हमें पता होना चाहिए, हमें आंसर आना चाहिए कि रब्बी अल्लाह मेरा रब अल्लाह है, ठीक हो गया। इसको इस तरह से भी आपने याद करना है, क्योंकि हम बात करते हैं हम अपनी आखिरत की भी तैयारी कर रहे हैं। अब जैसे हमने लफ्ज मिलाया था रब, इसी तरह से दीन। अब मैं चाहूंगी कि कोई एक सिस्टर दीनू हु ये वाला टेबल करें। मैडम मैं करूं? जी कौन सी सिस्टर है, नाम भी बताइएगा। अनीस फातिमा, मुझे हैंड रेज नहीं करने अच्छा हैंड रेज नहीं करना था। सिस्टर मेमूना आप मुझे बताइएगा जिसका हैंड रेज है, हम तीनों सिस्टर चारों से करवा लेते हैं। जी ठीक है। अब आप कॉल कर लीजिए, किसको आप कहेंगे सबसे पहले कॉल कर लें। फारिया आप आपको सिस्टर फारिया जी आप अनम्यूट कीजिए, आपका हैंड रेज है, टेबल करवाइए। जी दीन हूँ इसका दीन, दीन हूँ उन सबका दीन, दीन का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी। अगली जो सिस्टर है सिस्टर मेमूना आप बताइएगा किसका हैंड रेज था। सिस्टर अनीस का हैंड रेज था। सिस्टर जवेरिया सईद। चले सिस्टर जी, जवेरिया सिस्टर, कर लें, सिस्टर अनीस की कर लें। दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनु का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जीनियस क्लास है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये आप देखिए दीनू ना, इसमें दो नून क्यों आ गए, एक दीन का नून है एक ना का। जी अब और कौन सी सिस्टर अनीस में तारीफ करें, उन्होंने सबसे पहले हैंड रेज किया। नौरीन राना का हैंड रेज है, सिस्टर चलिए। नौरीन राना का। सिस्टर नौरीन कर लें। सिस्टर नौरीन को जरा दबाएं। जी अनम्यूट कीजिए। दीनुहु उसका दीन, दीनुहु इन सबका दीन, दीनु का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। अच्छा सारी सिस्टर्स सब सुनिएगा, हमने इस नहीं कहना, इस हमारा करीब वाला इशारा हो जाएगा, ठीक है। हमने उस दूर की बात करनी है, ठीक है। उसका दीन उन सबका दीन आप उसका दीन, ओके उस कहना है, उसका दीन, ओके। जी अब मैं क्वेश्चन करती हूँ, आप बेशक सारे अनम्यूट कर लें, ठीक है, और आंसर कीजिए। पहले ये सवाल सुनिएगा, माँ कहते हैं क्या को, ठीक है। अब इसमें जो हमारा सवाल बनता है माँ दीनू का, पूछा जा रहा है तेरा दीन क्या है, जवाब क्या आना चाहिए, दीनियल इस्लाम। दीनियल इस्लाम। इस्लाम, ठीक है। दीनी दीनी यहाँ बन रहा था, हमने कहा था दीनू का दीनी। अब ये जो एक और या मिलाई गई है ये मिलाने के लिए, ठीक है, जेर के साथ हमने मिलाना था तो एक या हमने इसमें एक साथ लगाई, और आसानी के लिए हमने कहा दीनियल इस्लाम।
یہ بھی ہمارا قبر کا سوال ہے. ما دینو کا تیرا دین کیا ہے؟ دینی دینی الاسلام. الاسلام. دینی الاسلام. ٹھیک ہے, اب روانی سے آپ لوگوں نے آنسر کرنے. ما دینہو, دینہ دینہ الاسلام. الاسلام. ما دینہم, ان سب کا دین کیا ہے؟ دینہم الاسلام. دینہم الاسلام. اگر ملانا آسان ہے تو میم کے پیش کو الف لام سے لام سے ملا دیجئے. اگر ملائے بغیر آسانی ہے تو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں دینہم الاسلام. لیکن ملانا زیادہ بہتر ہے کہ قرآن مجید میں زیادہ تر ملا کر پڑھا جاتا ہے. ما دینو دینہ کا الاسلام. دینی الاسلام. دینی الاسلام, میرا دین اسلام ہے. ما دینکم, دیننا اسلام. آپ سب نے اشارے بھی کرنے ہیں, ٹھیک ہے. جب ہم یہ اشارے کرتے ہیں نا, یہ سامنے جب ایسے ہو دینہم, اگر کوئی مجھے ایسے کہے نا دینہم, میرا ہاتھ کو اپنے رائٹ سائڈ پر 4 فنگرز کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ان سب کی بات ہو رہی جو مجھے نظر نہیں آ رہے, جو دور ہے. ٹھیک ہو گیا. ہمارا ٹیبل کیا ہے؟ ٹیبل ہے ہمارا ہو, ہم, کا, ہی, کم, نا. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی لائنز ہے نا, یہ دیکھتے ہو لائن ہے, ہم کے پیچھے, یہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ یہاں پر پیچھے کوئی الفاظ جڑ سکتے ہیں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. یہ جو اس رسم الخط میں یہ ہوتا ہے نا, جیسے رب میں با, اس کے ساتھ ہم جوڑ لیں گے, اس کے ساتھ ہم لا جوڑ لیں گے, ان, من, فی, اس طرح کے ہم ان کے ساتھ الفاظ کو جوڑ سکتے ہیں. اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں متصل, ملا ہوا. اچھا جی, اب یہ ایک چھوٹی سی ٹپ انہوں نے بتائی ہوئی ہے. کتاب دیکھیے گا, کوئی ایک کتاب پڑھتے ہیں, یہ دیکھیے کتاب. اب ہم اس کا پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں. کیسے؟ کتابوہ, کتابوہم, کتابو کا, کتابی, کتابوکم اور کتابونا. ٹھیک ہے. یہ کتاب کس کی کتاب ہے؟ ہم کہتے ہیں اس کی کتاب, ان سب کی کتاب, آپ کی, میری. اسی طرح سے قلم, ٹھیک ہے, قلم, قلمہ, قلمہم, قلمکا, قلمی, اسی طرح سے قلمکم اور قلمونا. ساعتی, اب ساعتی اس ٹائم میرے پاس ہے نہیں, گھڑی, گھڑی ان کے ساتھ کہتے ہیں گھڑی کو. ساعتہ, ساعتہم, ساعتکا, ساعتی, اسی طرح سے ساعتکم اور ساعتنا. جوال, جوال کہتے ہیں موبائل کو, جیسے یہ میرا موبائل ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو اس طرح سے کر لیں گے, جوالوہ, جوالوہم, جوالوکا, جوالی, جوالوکم, جوالونا. تو کیا سیکھا ہم نے کہ ہو, ہم, کا, جی, نا, یہ وہی کریں گے. ٹھیک ہے. ہو, ہم, کا, جی, کم, نا, ان کے پیچھے کوئی بھی آپ اسم لگا لیجئے, حرف لگا لیجئے, آپ کا ایک جملہ مکمل ہو جائے گا کہ اس کی کتاب, اس کا قلم, اس کی گھڑی, اس کا موبائل. یہ آپ کے سامنے بھی آ گیا. کتابوں کا, آپ کی کتاب, آپ کہیں گے کتابی, جی ہاں میری کتاب. قلموں کا, آپ کا قلم, قلمی, میری قلم. ساعتوں کا, آپ کی گھڑی, ساعتی, میری گھڑی. جوالو کا, آپ کا موبائل, جوالی, میرا موبائل. اب یہاں پہ ہے کہ آپ کا موبائل اب میرا موبائل ہے. ٹھیک ہو گیا جی, کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اچھا جی, ایک دفعہ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں اپنی پاکٹ بک کو. اچھا, یہ جو میرے پاس ہے نا, یہ اس کا تھوڑا سا اولڈ ورژن ہے, کیونکہ میں نے کافی ٹائم پہلے کیا ہوا ہے QC1. اب الحمدللہ میرا QC6 شروع ہو رہا ہے. تو اب آپ لوگ جو نئے لینے والے, ان کو یہ اس ٹائپ میں ملے گا, جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. اس کے تقریباً 12 پیجز ہوتے ہیں. ہے چیز وہی ہے, ویسے کوئی فرق نہیں ہے. نقطۂ تعلیم سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ چھٹی ہونے لگی ہے, ہمارا جو کمپلیٹ ہو گیا سبق جتنا ہم نے پڑھنا تھا. اب ہم دیکھ لیتے ہیں ایک مزے کی بات کہ ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے. ہمارے دماغ میں کروڑوں خلیے ہیں, ٹھیک ہے, مگر ہمارا دماغ کام کیسے کرتا ہے؟ ایسے نہیں ہے کہ ایک خلیے میں ایک بات محفوظ ہوتی ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ایک لفظ لے لیجئے, فیل. اب فیل آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے بجلیاں چمکانی ہے. اس کا اتنا فائدہ ہوگا کہ دیکھیے گا, سب سے پہلے ہم نے آواز سے, جب ہم سنیں گے ہاتھی کی آواز, میں پتہ چل جائے گا اچھا جی کہ یہ کس چیز کی آواز ہے. سب سے پہلے ہمیں چیزوں کی آواز کا پتہ چلتا ہے. اس کے بعد اس کو بولا کیسے جاتا ہے, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے. ان کے سپیلنگ سے پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم شیپ دیکھتے ہیں, شیپ سے اندازہ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ایموشن سے پتہ چلتا ہے. جو ہم کوئی سٹوری سنے, سٹوری سے پتہ چل جاتا ہے. اسمیل سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہو کیا جی.
اور اس طرح سے ایک پکچر میں آپ دیکھیں ایسی بہت سی الفاظ اور چیزیں آ جاتی ہیں جس سے ہمیں سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اول تو ہمیں فیل سے سورہ فیل فوراً یاد آنی چاہیے کہ اس میں ہاتھی والوں کا ذکر تھا. ٹھیک ہو کیا؟ اسی طرح سے جب ہم چیزوں کو سنتے ہیں یا بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس چیز کے بارے میں بات کی گئی ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اب آپ دیکھیے گا کہ الحمدللہ اس سبق کے اختتام پر ہم نے 33 نئے الفاظ سیکھ لیے جو قرآن مجید میں 1289 بار یا 99 بار آئے ہیں، اور ہماری بار الحمدللہ اب تیزی سے اوپر کی طرف جا رہی ہے. 10,000 سے زیادہ الفاظ ہم سیکھ چکے ہیں الحمدللہ. ایک پھول آپ کا ہوا. اب ہمارے پاس جو ہمارا بکے ہے اس میں ہمارا 3rd فلاور لگ گیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی سسٹرز؟ ہم نے اپنے کام بتائے پہلے بھی کہ ہم نے جو کرنے ہیں، 7 کرنے والے کاموں کو ضرور کیجیے گا. اور یہ اپنا سفر یہاں پر رکنے نہیں دینا. ٹیچر بنیے، یعنی کہ جو سیکھا ہے وہ سکھانا بھی آسان ہے تو پھر سکھائیے. سب سے بڑا فائدہ سکھانے کا یہ ہوتا ہے، اب جیسے میں نے خود QC1 کیا تھا، بہت ساری چیزیں جب میں نے دوسروں کو سکھایا، دوسروں کو سکھانا شروع کیا، بہت ساری چیزوں کے خود سمجھ آ گئی. تو آپ بھی کوشش کیجئے، نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم سب نے ٹیچر بننا ہے، اور اس کے لیے ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ. کہ جب آپ کا QC1 کمپلیٹ ہو جائے گا تو جب ہماری ادھر الفلاح میں ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ ہوگی ہم آپ کو بتا دیں گے. اگر آپ پارٹ بننا چاہیں، آپ حصہ لینا چاہیں تو ضرور جائیے گا الفلاح. اسی پر ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اگر کسی سسٹر کا کوئی کویسچن ہے تو وہ کویسچن ہم سن لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں، تاکہ جو لوگ میڈم جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں.